छत्र दे मालक सरवरे नायक सरवरे कुल आलम मुजस्समा याबे हयात सतगुरु ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਜੋ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ जिस बात वाल साडा ध्यान साडी तवज्जो दिवाना चाहुंदे ने कि जिहड़ी मनुख दी माँ हुंदी है, माँ मनुख दा गुरु होया करदी है। संसार दे विच तुरना, खाना पीना, उठना बैठना ते बोलना मनुख अपनी माँ तो सीखता है। जन्म लैंदियां सार साहब जी कहते सब तो पहला माँ की सोची आती है ते अंत दे समय तक मनुख नूं कदी भी माँ नहीं भुलदी। बंदा विदेश चलिया जावे, देश प्रदेश किते भी चलिया जावे, माँ नहीं भुलदी। दुनिया दे विच वाहद एक ऐसी हस्ती है माँ, जिहदे बारे मैं कई प्रचारकां नूं, कई विद्वानां नूं वड्डियां वड्डियां कन्वेंशनां दे विच, वड्डियां मजलिसां दे विच, वड्डे वड्डे दीवानां दे अंदर बोलदे सुनिया। कहंदे ने माँ है जिहड़ी रब दा दूजा रूप है। देखो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहते ने वो अजूनी है, अभूत हैं। गुरु गोबिंद सिंह कहते पंचभूतक शरीर उहदे पास नहीं है। तो किसी ने साक्षात दे विच अकाल पुरख वाहिगुरू नूं वेख्या होवे जां ना वेख्या होवे, पर माँ तो सब ने वेखी है ना जी। ते जिहड़े अकाल पुरख वाहिगुरू दे गुण ने, सारे गुण माँ दे विच हुंदे ने। मैं पावन बाणी पढ़ रहा सां ते साहब कहंदे सुत अपराध करत हैं जेते, जननी जीत न राखस देते। जिवें एक मनुख भावें अकाल पुरख वाहिगुरू नूं चेते करदा है ते भावें नहीं, वो सबना नूं रिज़्क दिंदा है। सतगुरु कहंदे आ ना, काहे रे मन चितवै उदम जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंतो पाए ताखा रिज़क आगे कर तरया। सिर सिर रिज़क संभाहे ठाकुर, देंदा दे लैंदे थक पाहे। मंगण वाले केतड़े दाता इको सोए, सबना जियां का एक दाता। वो सबना नूं ही देंदा है, कदी किसी नाल नाराज नहीं होता, क्योंकि सतगुर सदा दयाल है भाई। ते मनुख उस अकाल पुरख वाहिगुरू वल्लों मिली हुई सवासां दी पूंजी नूं अजाई गवाई जांदा है, अजाई गवाई जांदा है। ते वो किते किते इहो जिहियां घटनावां, इहो जे मंजर, इहो जे हालात मनुख दे सामने पैदा करदा है कि बंदे नूं किते चेता आ जावे। वड्डियां वड्डियां मजलिसां हुंदियां ने, वड्डे वड्डे दीवान लगदे ने,
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੈ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਮਾਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨ ਰਾਖਸ ਦੇਤੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਦਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੀ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਪਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤੇ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਖ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਐਬੀ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਫਨ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਟਿਫਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਹ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਈ। ਨੌਕਰਾਣੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਨੌਕਰਾਣੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਦੇ के तो वापस आ गई। बाद दोपहर 2 पैर बीते, तीजे पैर की आरंभता हुई 2:30-3 बजे। मदरसे दे विचों बच्चों नूं छुट्टी हुई, बग्गी गई तो बच्चे नूं लिआंदा। राजमहल दे विच बच्चा आया तो आउंदियां ही अपनी मां नाल लड़ना शुरू कर दिता, लड़ना शुरू कर दिता। मां कहती पुत्र किहड़ी गल्लों लड़ना है, तैनूं तेरे उस्तादा ने कुछ कहा है या किसी तेरे क्लासमेट ने, किसी क्लास फैलो ने तैनूं कुछ कह दिता। वो कहण लगे नहीं, मैं अज सवेरे प्रसादा भुल गया सां ते तुहानूं तो पता सी मैं भुल गया कि तुहाडे याद ही नहीं आया। वो कहण लगे नहीं पुत्र, ये किवें हो सकदा है, तू तो निक्का जा सां, तू बोलदा नहीं सी, तू तुरदा नहीं सी, सिर्फ पिया ही रहिंदा सा। मैं तो उदों भी तेरा दुख सुख महसूस करदी सां। आ भी बड़ी ध्यान देण योग बात है। बच्चे नूं कोई दुख होवे, मां नूं ते प्यो नूं जदे पता लग जाता है। कई बारी हुंदा है पुत्र नूं कोई बाहरों कोई किसी तरह की टेंशन होवे ते घर आउंदा है, मां उहदे चेहरे वल वेख के पढ़ लैंदी है तो फिर कल्ले नूं पुछेगी पासे बिठा के, पुत्त तैनूं कोई तकलीफ तो नहीं। पर दूजे पासे बिल्कुल उल्टा है, मां नूं कोई तकलीफ होवे तो पुत्र नूं नहीं जे पता लगता कि मां नूं की दुख है। वो कहण लगी पुत्त तू छोटा जा सा, मैं तो उदों तो तेरा दुख सुख महसूस करदी, तू दुध ना चुंगना, तू खेडना ना पालकी दे विच, तो मैनूं पता लग जाता सी भी तेरी सेहत अज ठीक नहीं है। तू पए ने इधर उधर करवटां लैणियां, मैनूं लगदा सी कि मेरे पुत्र नूं ठंड लग रही है। तू तिल मिलाउणा, रोना, विरलाप करना, तो मैनूं लगदा सी मेरे पुत्र नूं गर्मी लगदी है। तो जदों मैं पक्खी झलदी तू आराम नाल सौ जांदा। पुत्र मैं तो तेरे बारे सब जानदी हाँ। कहण लगे मां जे तू जानदी है तो फिर प्रसादा क्यों नहीं भेजा। वो कहण लगी मैं भेजिया सी, गोली नूं बुलाया, कहण लगे इधर आ सामने, आके खलो गई। कहण लगी मैं तैनूं प्रसादा दिता सी तो फिर वो प्रसादा कित्थे है, मेरा पुत्र सारा दिन भुखा रहा। तो वो जिहड़ी नौकरानी सी उन्हें फिर जवाब दिता, क्योंकि राजियां दे दरबार विच ना जी जिहड़े पूरे विश्वास पात्र बंदे हुंदे ने, अज भी इदां ही है। दुनियावी जिहड़े मुख सेवादार जिन्हां असीं लीडर कह दिंदे हां, उन्हां दे नाल वो बंदे रहिंदे ने जिहड़े बिल्कुल ऐन उन्हां दे विश्वास पात्र होण। घर वाला सैनापति है, वो बीबी राजमहल के अंदर परिवार की साਂਭ संभाल दे विच लगी हुई है। वो कहण लगी मैं तैनूं प्रसादा दिता सी ते कित्थे है प्रसादा, मेरा पुत्र सारा दिन भुखा रहा। वो कहंदी तुसीं मैनूं जांदियां कहा सी भी जिहड़ा बच्चा सारियां तो सोहना है उहनूं दे आई, मैं दे आई। वो कहण लगी सारियां तो सोहना तो मेरा ही पुत्र है। वो कहण लगी तैनूं लगदा है मेरा मैनूं ही सोहना लगदा है, तेरा तैनूं सोहना लगदा है, मैनूं मेरा पुत्र सोहना लग्या, मैं अपने नूं दे आई। जे ते तू कहंदी भी राजकुमार नूं दे आ, फिर मैं इहनूं देंदी, पर रोटी वाला डब्बा मैं ते अपने पुत्र नूं देता, क्योंकि मेरे पुत्र तो सोहना कोई भी नहीं। मावां लाड़ लाउंदियां, असीं देखदे हां, ना तो हुंदा दीपिंदर है जी, ना तो हुंदा गुरविंदर, ना तो हुंदा फतेहवीर, ना तो हुंदा कोई सोहने सोहने ना महताब सिंह हुंदा, पर मां उन्होंने एक छोटे नाम नाल बनाउंदी है। ते वो भावें बजुर्ग भी हो जाए, उन्होंने उसे नाम ही बुलाएगी। मां का रुतबा है।
मैं परत के उत्थे जावां। वो जिहड़ा गुनाही सी वो कहण लगा, मैनू मेरी माँ की निगाह नाल वेखो, तुहानूं कोई गुनाह नज़र नहीं आएगा। तो भगत साहिबान कहंदे, हे अकाल पुरख वाहिगुरू, जिवें माँ अपने बच्चे के गुनाहां नूं नहीं देखदी, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता, तू मेरी माँ की निगाह नाल वेखो मेरे वल। वो जज लाजवाब हो गया, कह लगे बात तो बड़ी पाएबंद है। भगत जी कहते सुत अपराध, सुत का अर्थ होंदा पुत्र, अपराध का मतलब है गुनाह करना। सुत अपराध करत हैं जेते, जननी जीत न राखस तेते। रामैया हाँ बारक तेरा, हे अकाल पुरख वाहिगुरू रामैया, मैं भी तो तेरा बच्चा ही हाँ। काहे न खंडस अवगुण मेरा। अज के पावन श्री मुखवाक दे विच साहिब गुरु रामदास सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, कहते जिन हर हिरदय नाम न बसियो, जिन्हां दे हिरदे विच हरि परमेश्वर की याद नहीं है ना, उन्हां दा कसूर नहीं है। वो ये विचारे क्या करे, जा भाग तुर मंदे, तुर तो ही मंदे भाग ने जिन्होंने इहो जी अभागी मां मिली जिन्हें उन्होंने वाहिगुरू के नाम नाल जोड़े ही नहीं। साहब जी कहते ने, कहते माए मुंडो ते गुरु की जाते परम न जाए। कहने लगे ऐसे गुरु की मां का सिर मुन देना चाहिए। कैसे दी? जिहड़ा गुरु अपने चेलियां नूं सिक्ख्या देवे ते उन्हां दे अंदरों भरम ना कढ सके, भरमां दे विच पा दे। माए मुंडो ते गुरु की जाते भरम ना जाए, आप डुबे चौं वेद में। पढ़न पढ़ाउण च सारी जिंदगी बतीत हो गई, चेले दिए बहाए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी दे समकाली होए ने बाबा बुल्ले शाह। वो कहंदे इल्म पढ़िया ते अमल ना कीता। माए मुंडो ते गुरु की जाते भरम ना जाए, आप डुबे चौं वेद में। पढ़न दे उत्ते जोर देता, चेले दिए बहाए। ते बाबा बुल्ले शाह ने क्या, वो कहंदे इल्म पढ़िया अमल ना कीता, ते तेरियां किस कम दित्तियां आवाज़ां मुसलमान वीर आवाज़ नहीं देंदे। कहण लगे बुल्ले शाह पता तद लग सी जद चिड़ी फसी हथ बाजां। सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने जिन हर हिरदय नाम ना बसियो, तिन मात कीजै हर मांझा। एक विद्वान होया राइटर लिखारी तुलसीदास, वो कहता जननी जनै ता भगत जन कहदा ताकै सूर, नाहे ता जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। ऐसे बच्चे नूं जन्म ही ना देवे जिन्हें बंदगी नहीं करनी, जिन्हें नितनेम नहीं करना, ते कसूर सारा मां दा कढ़िया गया। सदा तो वो बच्चा जड़ा ये नहीं सी भी वो सदा तो बागी सी, किसी की गल ही नहीं मनता सी, छोटा भी सी गल भी मनता सी। उन्होंने कह दिंदा पुत्र तू इधर नहीं जाना, मैं नहीं जावांगा। पुत्र इधर अग बलदी है, तू छोटा हले तेरा हाथ ना सड़ जाए। पुत्र ये डूंगा पानी है, तू इधर नहीं जाना। पुत्र डग्गी दा ढक्कन नंगा है, तू इधर नहीं जाना। बच्चा नहीं जाता सी। पुत्र तू स्कूल जाना है, वो स्कूल जाता सी। पुत्र तू ट्यूशन जाना है, पुत्र तू आ कपड़ा नहीं पहनना, तू इन्हां नाल नहीं रलना। तो जे उन्हां दे विच एक गल होर ऐड हो जाती, पुत्र तू बाणी पढ़नी है। उन्हें पूछना सी मां बाणी की हुंदी है? कल दी गल है, कल शाम दी।
मैं बैठा सां ते अजान की आवाज़ आई। मुसलमान वीर ने अजान दी। मेरा ध्यान एकदम उधर गया तो बाबा जी की पोतरी है छोटी जी मेरी गोदी 'च बैठी सी तो जिवें बच्चे चौड़ करते हैं उच्ची उच्ची बोल रही सी, गल्लां कर रही सी, मैनू कुछ पुछ रही सी। तो जो अजान की आवाज़ आई मैं क्या पुत्र एक मिनट चुप कर। वो चुप कर गई। तो जो अजान की समाप्ति हुई मैं कहा हुण दस। कहने लगी बाबा जी पर चुप क्यों कर गए। मैं कहा पुत्र अजान दे रहे सी मुसलमान। कहने लगी रात नूं भी बाणी पढ़ते। मैं कहा नहीं पुत्र ये 5 टाइम नमाज करते हैं। आपां तो कहते तड़के हत्थ नहीं करते, ये 5 टाइम क्यों करते हैं। मैं हैरान सा, छोटी जी बच्ची है तो गल्लां करदी है सियाणियां वालियां। माता कोले बैठी सी, कहण लगे ये कोई बजुर्ग है, बुढ़ी माता इहने जन्म लिया किते, पहलां दी कमाई है इहदी। बच्चे अक्सर इदां दे सवाल पुछते रहंदे हैं। जेकर असीं नितनेम करांगे, बाबा फरीद साहब ने पुछिया सी ना माँ कहण लगी पुत्र नमाज करया कर। कहण लगे नमाज नाल की हुंदा। कहंदे अल्लाह शक्कर देंदा है। बाबा फरीद साहब नूं तां ही ते शक्करगंज कहंदे आ। कहण लगे अल्लाह शक्कर देंदा है। हुण बाबा फरीद साहब ने झूठी मूठी अखां मिच लैणियां। छोटा जिहा बच्चा सी, नहीं नमाज आउंदी सी। माँ ने जदों आवाज़ देनी, अजान देनी, नमाज करनी, जदों अल्लाहू अकबर की आवाज़ देनी उन्हें अखां मीच के ते माँ दे नाल गोडियां दे भार बैठ जाना। इदां करदियां करदियां तुसीं देखो माँ ने बाबा फरीद साहब नूं किड्डे वड्डे रुतबे ते पहुँचा दिता। ते बाबा जी कहंदे ने तिन धन जणेंदी माओ आए सफल से। मेरी माँ धन है। से प्रवान दरगह सच जाए, नानक जननी धनी माए। सतगुरु कहते वो माँ धन है। माँ ने पूछना सी, माँ नूं पुछया जाना सी बच्चे वालों कि माँ ये तू जिहड़ा नितनेम करदी है इहदे नाल की हुंदा है, नितनेम आपां नूं करना चाहिए। माँ आपां कौन आ। ते जे किते उदों दस्सिया हुंदा तां अज तेरे पुत्र दे हत्थ विच शराब की बोतल नहीं। जे छोटे नूं गुटका फड़ाया हुंदा अज तेरे पुत्र दे हत्थ 'च शराब की बोतल नहीं जे होनी सी। मैं एक होर बेनती करा, अजकल तो जमाना ही बदल गया है। बच्चों नूं छोटी जी प्लास्टिक की बोतल दे दी जाती है दुध चुंगण वास्ते, तो वही बोतल कई सालों बाद कच की बोतल का रूप धारण कर लेंदी है, शराब की बोतल बन बैठती है। तो शरीर इन्ना ज़्यादा निढाल तो इन्ना ज़्यादा बेकार निकारा हो जाता है। फिर प्लास्टिक दी बोतलां लगदियां ने भी ये तकड़ा हो जाए। तो जे किते उदों गुटका फड़ाया हुंदा हत्थ दे विच ते गुटके तो पोथी ते पोथी तो गुरु ग्रंथ साहिब। अज घरां दे विच रखने बने दे ने शराब रखण वाले, माफ़ करिओ। उत्थे महान कुछ पिया होना सी, उत्थे ज्ञानी दित सिंह का जीवन पिया होना सी, उत्थे सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाल, सरदार मंगल सिंह किरपानधारी, उत्थे बाबा सोहण सिंह पकना, बाबा गुरदित सिंह कामा गाटा मारू वर्गियां दियां जीवनियां पईयां होणीआं सी। उत्थे सरदार हरी सिंह, बाबा बंदा सिंह, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह वर्गियां दियां जीवनियां पईयां होणीआं सी, जिथे अज खानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शराब ਦੀਆਂ बोतलां पईयां ਹੁੰਦੀਆਂ। ये देन की दी है माँ दी। ताई ते सतगुरु ने देखो कितनी सराहता की है। धन धन जननी जिन गुरु जणिया माए, धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिन्नी डिठा तिन्ना लय छड़ाए। माँ धन है।
ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ, ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਹੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਬੱਚੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੋ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੋ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।